Good morning, everyone. Today we are going to discuss trigonometric identities, which is from the chapter Introduction to Trigonometry. A very important topic. For sure, you will get one problem in your board exam, and the problem will be of the kind prove the given identity. Okay, so बहुत important topic है. For sure एक problem आएगा. ओके डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग आपके जो राइट हैंड साइड है उस फिगर को ऑब्जर्व करो. ये राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दिस इज योर एंगल एक्स. ओके द साइड ऑपोजिट टू एंगल एक्स इज ए and the side adjacent to angle x is b and c is your hypotenuse. Okay, so we know that sin x is nothing but opposite side of our hypotenuse, so sin x is nothing but a over c. Similarly cos x is nothing but adjacent side over hypotenuse, that is b over c. Tan is nothing but ratio of sine over cos, so when you divide sine over cos you will get c will get cancelled and you will get tan x as a over b. And this is nothing but your Pythagoras theorem, a square plus b square is equal to c square. And if you take this as equation 1 and if you divide equation 1 everywhere by c square, what you will get, a square over c square plus b square over c square is equal to 1. Okay, we already know a over c is sine x and b over c is cos x. Okay, b over c is your cos x. Okay, b over c your cos x. Okay, when I substitute these values in this equation, I'll get sine square x plus cos square x is equal to 1. Okay, x is nothing but you can replace x with theta also, so you'll get sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, this is an identity, it is true for all values of theta. Okay, so this identity you can prove using your right angle triangle Pythagoras theorem. Okay, very important identity. Using this identity we will prove other two identities. Okay, uh, so let's this identity we have just proved. Let's take this identity as 1. Okay, अभी मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करूँगा. तो जब व्हाट आई विल गेट साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta over sine square theta is equal to 1 over sine square theta. Okay, sine square theta over sine square theta is 1 plus cos over sine is cot, so cot square theta is equal to 1 over sine square theta is cosec square theta. ये मेरी आइडेंटिटी 2 हो गई है. तो आई कैन राइट 1 प्लस cot square theta is equal to cosec square theta. ओके, ये मेरी आइडेंटिटी 2 हो गई है. अभी मैं क्या करूँगा, 1 को प्रीवियसली साइन से डिवाइड किया था, अभी मैं कॉस से डिवाइड करूँगा. ओके, सो आई विल गेट साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos square theta plus cos square theta over sin square theta is 1 and then 1 over cos square theta is secant square theta. Sin square theta over cos square theta is tan square theta plus 1 is equal to secant square theta. Okay, so I'll get the third identity 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. Understand? So अगर ये आइडेंटिटी याद है, ईजिली हम लोग आइडेंटिटी 2 और आइडेंटिटी 3 प्रूव कर सकते हैं. ओके, बहुत सिंपल, आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटी याद रखना है, उसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है. होप आप समझ गए. ओके, अभी प्रॉब्लम्स देखते हैं, जो प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ओके, सो ये प्रॉब्लम्स है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कैसे सॉल्व करें, कैसे थिंकिंग डेवलप करें ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ओके, तो जब भी tan और cot आता है, whenever you get tan and cot in your problem, don't try to convert tan and cot in the ratio of sine and cos. Okay, don't write tan square theta, sine square theta or cos square theta
or you start the process and at some place you will get stuck. Okay, उससे अच्छा है अब हमेशा राइट हैंड साइड में ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड में क्या है और ट्राई करो कि वो लाने के लिए. ओके, सो अब ये प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम देख लेंगे. LHS साइड में हम लोग को है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर cot स्क्वायर थीटा माइनस 1. ओके, मुझे tan चाहिए तो आई विल ट्राई टू, ये cot को आई विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू tan विच इज़ वेरी इजी. ओके, सो मैं क्या करूँगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर cot स्क्वायर थीटा को 1 ओवर tan स्क्वायर थीटा लिखूँगा माइनस 1. ओके, अभी मैं इसको एलसीएम ले लेने से क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा. सो व्हाट आई विल गेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा. अभी tan स्क्वायर थीटा जब ऊपर चले जाएगा आई विल गेट tan स्क्वायर थीटा, न्यूमरेटर में वैसे ही रहेगा tan स्क्वायर थीटा एंड द डिनोमिनेटर आल्सो आई हैव 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाएगा एंड आई विल गेट tan स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट योर RHS. समझ गए? सो ओनली बाय चेंजिंग tan to cot you will get the solution. अगर if you start replacing cot over cos square theta divided by sin square theta, and then here you will get cos square theta minus sin square theta over sin square theta, और numerator में 1 minus sin square, process will be very long and you will get somewhere stuck. Okay, always try to observe your RHS. Okay, and try to convert the ratios in your LHS to get the ratio in RHS. Okay, अभी दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे. ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साइन को tan को साइन कॉस में लिखने जाके दे विल गेट स्टक. ओके, सो इसमें भी हमें राइट साइड में cot चाहिए. ओके, LHS क्या है, LHS इज 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x. ओके, मुझे cot चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cot x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा. ओके, सो देन आई विल गेट 1 इंटू cot x इज cot x प्लस tan x टाइम्स cot x is 1, we already know, and then in the denominator cot x times 1 is cot x minus tan x times cot x is 1. So this is nothing but your RHS. Okay, so this is the best way. Okay, if you start writing this you just try. Okay, sin x as sin x over cos x and you start doing, you'll get stuck. Okay, so this is the best way. Okay, let's do one more problem. Okay, prove cos x times cot x over 1 minus sin x minus 1 is equal to cosec x. Okay, cosec x मुझे चाहिए राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड आई हैव cos x which is very good, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. देन आई हैव cot x. नाउ आई शुड राइट cot x इन टर्म्स ऑफ cos over sin. Okay, let's do this problem. Okay, सो मेरा LHS है cos x टाइम्स cot x ओवर 1 माइनस sin x माइनस 1. ओके, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, cos x टाइम्स cos x ओवर sin x whole divided by 1 minus sin x minus 1. ओके, सो क्या मिलेगा मुझे सिंप्लीफाई करने से, cos स्क्वायर x ओवर sin x ओवर 1 माइनस sin x माइनस 1. ओके,
सो अब जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा एलसीएम लेके मुझे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स ओवर वन माइनस साइन एक्स। ओके, अभी यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन एक्स है, ये जो मैं अगर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूँगा मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स नीचे आ जाएगा तो साइन एक्स टाइम्स वन माइनस साइन एक्स। ओके, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमने ऑलरेडी देखा है वन, तो वन हो जाएगा, वन हो के वन माइनस साइन एक्स आ जाएगा, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी वन माइनस साइन एक्स है, ऊपर भी वन माइनस साइन एक्स है, वो कैंसिल हो जाएंगे और वन ओवर साइन एक्स बचेगा। वन ओवर साइन एक्स इज नथिंग बट योर कोसिक एक्स। ओके, कोसिकेंट एक्स विच इज योर RHS। ओके, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओके, इन केस बहुत बार स्टूडेंट्स कोई आइडिया क्लिक नहीं होता, समटाइम्स द स्टूडेंट ट्राइज सो मेनी वेज एंड दे फेल। ओके, in the board exam time is very important. Okay, if you have used more than 5 minutes to prove this identity, don't more than 5 to 10, if you have taken more than 10 minutes, don't keep doing this problem. Instead I will tell you a very simple trick which will be very useful. Okay, अगर आप स्टक होते हैं तभी ये आई रिकमेंड ये ट्रिक यूज़ करने के लिए, वरना मत यूज़ करो, आपको पॉइंट्स तो मिलेंगे। ओके, सो लेकिन आई डोंट गारंटी पूरे पॉइंट्स मिलेंगे, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ज़ीरो यू विल गेट सम पॉइंट्स। ओके, तो ये और इवन ये ट्रिक आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत यूज़फुल रहेगी। ओके, इवन इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो ये आइडेंटिटी हम लोग को प्रूव करना था। ओके, ये आइडेंटिटी हम लोग को प्रूव करना था, आपने कुछ रेशियोज डाले, आप आर एबल टू प्रूव इट। ओके, तो जब क्या करो, एक्स यहाँ पर कॉट है तो हमेशा याद रखो कॉट और टैन रहेगा, तो डोंट सब्स्टिट्यूट जीरोस, इंस्टेड सब्स्टिट्यूट साइन 30। एक्स को हम लोग 30 डिग्रीज ले लेंगे। ओके, एक्स को हम लोग 30 डिग्रीज ले लेंगे, और ये तो आपको 100% कैसे भी ये टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का टेबल याद करना है। इफ़ यू आपको पता नहीं कैसे याद करना है, मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा इसको इजी से कैसे याद करना है। ओके, तो x में 30 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, cos 30 टाइम्स cot 30 ओवर 1 माइनस साइन 30 माइनस 1। ओके, cos 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर मैं देखूँगा cos 30 की वैल्यू है √3 ओवर 2 टाइम्स cot 30 की वैल्यू क्या है, cot यहाँ है, 30 की वैल्यू है √3। ओके, √3 ओवर 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 ओवर हाफ, 1 माइनस हाफ, यहाँ पर एक 1 है। ओके, सो √3 ओवर 2 टाइम्स √3, तो √3 टाइम्स √3 3 है, तो मुझे मिलेगा न्यूमरेटर में 3 ओवर 2, डिनोमिनेटर में 1 माइनस हाफ इज हाफ, ऊपर है 3 ओवर 2, डिनोमिनेटर में 1 ओवर 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट 3 इन द न्यूमरेटर, 3 माइनस 1 इज 2, इसका वैल्यू आ गया आपको 2। ओके, अब यहाँ पर ये आपको लिखना है LHS। ओके, RHS में क्या है, कोसेक एक्स, सो कोसेक 30 क्या हो गया, यहाँ कहाँ है कोसेक, यहाँ पर है, कोसेक 30 क्या हो 2। ओके, सो दिस इज इक्वल टू योर LHS। ओके, ये टेक्निक आपको ओनली व्हेन यू आर स्टक ये टेबल यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूट करो, आपको 2 मिनट्स या 3 मिनट्स में मिल जाएगा। इवन आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फ्यूचर में लिखने वाले हो वहाँ पर विच LHS देके व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ RHS पूछेगा, तो जस्ट वो ऑप्शंस ABCD में X0 या X30 कुछ भी आप एंगल सब्स्टिट्यूट करके
एल एच एस इज इक्वल टू कौन सा वैल्यू आर एच एस एल एच एस को इक्वल कर रहा है वही वैल्यू होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे. थैंक यू.